for the drug seizures in the world. 6%, that's a huge number. 6% of the world seizure of drugs was here to tell you. Why the states of Punjab and Northeast are also in the states of Sikkim? So in Punjab, what is there today? First is the geography, we already know. Why I'm focusing here in Punjab? Because Punjab, so we are taking the campaign of Nasha Mukh Jammu or Nasha Mukh up for the drug use in the country. So why about that? First the geography. In 2016, some government policy making that directly held accountable for the smuggling of drugs. This is a huge thing. Cannabis or some kind of other drugs, we are moved it. Okay, the Nana Singh is doing, we will also do that. So these are the basically highlighted very well by Neha Sanyal and Mr. Ved Mehra, but I will be taking it up. Top two cities are from India. There are Delhi and Mumbai. So what makes Delhi, Mumbai and these Indian cities a hub for drug abuse? So basically blame the geography of the country, because that is all that we could do. India is sandwiched between the Golden Crescent, that is Iran, Afghanistan, Pakistan, and the Golden Triangle, Myanmar, Laos and Vietnam, the countries. The Golden Triangle is a very major hub, or we can see the leading producer of meth in the world, whereas the Golden Crescent is the leading producer and exporter of weed in the world, or opium you can say, the afim that we see in the real world. Other things that we take forward with this is weed, or you say the ganja, which is widely consumed in India and also has some festival linkages to it. We see that bhang is consumed heavily on Holi or Shivratri. In Vedas also, it has been recognized as the five herbal medicines have been recognized, and weed is one of them. And it is said to be of a great medicinal value, which no doubt it is, but it has some abusive things related to it. So that's the first aspect, the definition and why it leads to or wherever the consumption of weed happens. Second, the drug rally is so minute. Then we will talk at the working consumption of weed or hashish. Well, and especially Akriti for conducting this program extremely well. Now, before I start, as to sir ने बड़े अच्छे ढंग से आपको बताया that what exactly are the pros and the cons, the history. Today I am going to give you 3 short stories. मैं आज आपको एक ऐसी 3 कहानियाँ सुनाऊंगी, especially all the students जो अपने एग्जाम्स की तैयारियाँ कर रहे हैं, वो ध्यान से इन तीनों कहानियों को सुनें. There is a very huge saying about cannabis. अगर अर्थशास्त्र आप पढ़ें तो अर्थशास्त्र में कैनबिस के बारे में बहुत बेहतरीन शब्द लिखे गए. This can be in your examination also, that cannabis has been mentioned in which of the Vedas. So cannabis was mentioned very very beautifully in the Atharva Ved. उसमें जैसे आकृति ने बताया, it was very specifically written कि ऐसी कुछ 5 ऐसी herbs होती हैं जिससे आपको एंजाइटी नहीं होती, जिससे आपकी एंजाइटी जो है बड़ी प्रॉपरली मैनेज हो जाती है, और उनमें से एक है कैनबिस. अब कहानी ऐसी थी कि एक दिन शिव भगवान जो थे वो एक पेड़ के नीचे थे, तो कहते हैं कि धूप बड़ी है, वेयर डू आई एग्जैक्टली सिट, मैं कहाँ बैठूं. तो शिवजी भगवान कहीं एक ऐसे कोने में जाके खड़े हो गए, एंड दिस इज अ स्टोरी व्हिच इज बीन स्पेसिफाइड इन द वेदास. एंड जब वो खड़े हुए उनको सडनली रियलाइज हुआ कि यहाँ तो बड़ी अच्छी छाँव है. जब उन्होंने उस पेड़ को देखा, उन्होंने उस पेड़ की बड़ी तारीफें करी, और उस पेड़ को उन्होंने बोला कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतनी धूप में इतनी छाया दी. उन्होंने उस पेड़ के पत्ते तोड़े, एंड देन ही कंज्यूम्ड दोज लीव्स. कहते हैं वो जो पत्ते थे कैनबिस के थे. कैनबिस ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नोन विद डिफरेंट नेम्स. कहीं इसको पॉट कहा जाता है, वीड कहा जाता है. हिंदुस्तान में हम इसको वी कैन यूज इट इन वेरी डिफरेंट फॉर्म्स. हम गांजा, अफीम, चरस इसके नाम से कहते हैं. I will not get into the details of the NDPS Act of 1985. मैं सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहूँगी NDPS Act के बारे में. As per the NDPS Act, which is called the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances 1985 का ये जो एक्ट है, इसमें कुछ चीज़ें, कुछ हद तक आपको कैनबिस की कुछ चीज़ें अलाउड है बेचना और यूज़ करना, और कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है. Now with so many such massive laws in this country, उसके बावजूद भी द यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कहती है कि 70 करोड़ से ज़्यादा जो इंडियंस हैं दे आर यूजिंग ड्रग्स. तो वेयर एग्जैक्टली आर वी गोइंग रॉन्ग? अगर 70 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानी
आज भी यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के हिसाब से ड्रग्स ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वी एज अ सोसाइटी हैव फेल्ड। नशा जड़ा है बाकी तो खैर साढ़े आम बोल चाल च इ'यां जवानी का नशा, कुर्सी का नशा, उसी अस बड़े लाइटली लैने इ'यां टाली ओड़ने, पर मेन जी गल होंदी है वो गल होंदी है इस नशे पर जी अजकल ये जिन्नियां ड्रग्स चली दियां न, ओपीएम हो गया, हीरोइन होई गई, इंदी ज़्यादा गल चलती है। तो मैं 37 साल नौकरी की कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज विच, और साड़ा महकमा जड़ा हा वो एक नोडल एजेंसी हा ये NDPS एक्ट की, उसदा पहले OPM एक्ट हा जां होर जेह्ड़े नशे वाली चीज़ां उन्हें गी कंट्रोल करने वास्ते, और 85 में जो ये एक्ट बनया NDPS एक्ट तो नोडल एजेंसी ही, असें काफ़ी केस भी किए, बनाए भी, सजा भी दवाइयां लोगों की, और असें गी इनाम भी मिलता। उसदे पहले जो अस अपनी सर्विस के दौरान अंमृतसर गए 83 विच, साड़ा जिहड़ा मालखाना हुंदा हा एक बंदे को 1000 किलो अफीम पकड़ी थी, 85 किलो 75 किलो पता नहीं, वो पूरा ग्राउंड का अफीम तो वो कन्नै भरे दा हा। तो हो सकता कि हीरोइन पहले चली पेदी हुई, लेकिन कुसै गी इहदे बारे च पता नहीं है। ये पता कदों चलिया साल 82 में जो एशियन गेम्स दिल्ली हुई, उत्थे जिहड़े प्लेयर हिस्सा लैन आए बाहर का, वो अपनी ताकत या एक्टिविटी बढ़ाने वास्ते, एनर्जी बढ़ाने वास्ते उन्हें ड्रग्स तो ये हीरोइन वगैरह लियाना शुरू की। तो उत्थे पहले बार ये केस जोड़ा है हीरोइन का पता लगा कि हिंदुस्तान से हीरोइन भी आई है। उस वेले पूरी दुनिया हाहाकार मची आ, अमरीका तो हिंदुस्तान ने आपस मीटिंग की कि इसी किएं रोके जा। तो उन्हें उस वेले NDPS एक्ट नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सबसटेंसेस एक्ट पास किया 1985 में, जिदे उन्हें सज़ा का बड़ा कठोर प्रावधान किया कि जोड़ा भी बंदा ये चीज़ां लेइयै पकड़ोआ, जिदे कोल चीज़ां लभियां, कैरियर होआ, कंज्यूम करता हुआ, उसकी घट्ट कोला घट्ट 10 साल की सज़ा, 1 लाख रुपये जुर्माना। अस साड़ी भी पोस्टिंग बार्डर पर हुई, असेंगी पता नहीं चलता कि हीरोइन केड़ी है ते विटामिन B पाउडर केड़ा है, विटामिन B कंपलैक्स केड़ा है। वो कई बार क्या होना कि पाकिस्तान से बड़े बड़े स्मगलर है उन्हें भेजनी हीरोइन, तो उन्हें पढ़ाइए भेजना जो कैरियर है कोरियर है, उन्हें पूछना भी क्या चीज़ है जी विटामिन B कंपलैक्स है, क्या कीमत है जी 300 रुपये किलो, कल 300 रुपये किलो लाइए तो कस्टम ड्यूटी लगी छड़ी होगी। अपने को भी बड़िया गलतियां, क्योंकि कुछ चीज़ का नहीं पता हुआ तो कुछ भी निकली आ। करते करते ड्रग टेस्टिंग किट आई है, सारे ही सप्लाई हुई है, साढ़े बार्डर भी आई है। असें जो एक अद्धा किया तो आखो ये बड़ी भारी गलती करते हैं, अस जी नंगाई जाते हैं, ले आओ तुम पैसे के लालच, गौरमेंट का रेवन्यू आना। वो कई बार जो इंस्पैक्टर है अपने साथी दूए उनकी भी जेबां भरंदियां, वो पैसे भी दे देंगे जिन। अच्छा जिला चलती है पाकिस्तान च, अफगानिस्तान च होंगी, पाकिस्तान 80,000 रुपये किलो, मतलब लाख रुपये किलो लाई लाओ। लाहौर तक आते आते 2 लाख रुपये किलो हो जाती। तो जिला अंमृतसर पुजती ही अटारी बार्डर पर जी अस कीमत लाते रहे 3 लाख रुपये किलो, तो जिला दिल्ली पुजनी 5 लाख रुपये किलो। तो ये अस जो अखबार तुम पढ़ते हो ना, इतने करोड़ की, 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, वो जो 5 करोड़ जो रेट लाते हैं हीरोइन का, वो अमरीका का रेट है। अच्छा ये एक ऐसी चीज़ है, ये जिनी मर्जी मिलावट करते जाओ, पाउडर किलो लिया भैं स्वाह पाई ओड़ो, बिच मैदा पाई ओड़ो, आटा पाई ओड़ो, जो मर्जी बदे जाग, क्योंकि प्रॉफिट कमाने वास्ते बंदा क्या नहीं करता, मिलावट कुछ नहीं करता। खैर जो भी है, उसके बाद असें बड़े चुकन्ने होइए। और मुझे याद है कि अंमृतसर आंदे पहला एक मोहम्मद रफीक नाम का बंदा हा, 450 ग्राम वो को ब्राउन शुगर पकड़ी, जी कि उन्हें अपने प्राइवेट पार्ट्स छुपाई थी। वो केस में लड़िया, वो सारा केस जो ड्राफ्ट किया एडिशनल सैशन जज के कोर्ट से। उसी पहला केस एक ऐसा है जो रिकॉर्ड टाइम इन पूरे इंडिया पहला केस, नार्दन प्रदेश छोड़ो पूरे हिंदुस्तान जिसी 10 साल की सज़ा, 1 लाख रुपये जुर्माना। लाइब्रेरी कठुआ के प्रांगण में आज हमने एक नो ड्रग्स के ऊपर अवेयरनेस कार्यक्रम शुरू किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि LG एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनरेबल LG एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये सख्त हिदायत दी गई है तमाम सरकारी इदारे और गैर सरकारी इदारों के अंदर इस प्रकार की जो अवेयरनेस ड्राइव जो है नो ड्रग्स के ऊपर कैंपेन चलाया जाए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कठुआ लाइब्रेरी में भी हमने एक अवेयरनेस ड्राइव शुरू किया, जिसमें हमारे कठुआ लाइब्रेरी के रीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। और आज के जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे श्रीमान ML तूफान जी, और रिटायर्ड IRS ऑफिसर और एडवोकेट अपू सलाथिया जी, जो आज हमारे एज ए सोर्स पर्सन थे। और उनके साथ ही शशि शर्मा जी और हमारे कठुआ के जाने माने पोइट धीमान जी। देखिए इसका मकसद था कि युवाओं के अंदर
नशे के जो दुष्प्रभाव है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, नौजवान पीढ़ी जो है इससे दूर रहे, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को अडॉप्ट करे और समाज की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए वो काम करे। और जहाँ भी उनको इस प्रकार कोई नौजवान उनको कहीं इस नशे की चपेट में मिलता है, जहाँ आसपास इसका कोई व्यापार करके दिखता है, तो आज गवर्नमेंट की तरफ से एक टोल फ्री नंबर दिया है, वो अपनी शिकायत जो है टोल फ्री नंबर के ऊपर रजिस्टर कर सकता है। तो तमाम मेरी नौजवान पीढ़ियों से ये आग्रह है कि नशे को दूर रखे। नशा समाज को, पूरे देश को खोखला कर देता है। आज समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं नशा करने के लिए जो हमें सीधा विनाश की ओर ले जाती हैं। जिस देश के अंदर भगत सिंह पैदा हुए, जिस देश के अंदर सुभाष चंद्र पैदा हुए, उस देश का नौजवान किस चौराहे पर खड़ा है, ये चिंता करने का विषय है साथियों। इसलिए मेरे नौजवान पीढ़ियों से ये आग्रह है कि आप अपने माइंड को, अपने दिमाग पर को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर लगाएं, खेल कूद को अडॉप्ट करें, पढ़ाई की ओर ध्यान दें और उन लोगों से दोस्ती करें जो पॉजिटिव डायरेक्शंस की तरफ काम कर रहे हैं। लाइब्रेरी आकर किताबें पढ़ें, सो दैट कि आप समाज के लिए, क्योंकि एक एसेट्स का रूप है, और अगर आप अपनी सेहत को मेंटेन करते हैं, वो समाज के लिए एक आने वाले दिनों में वो एक एसेट्स का रूप की तरह काम करता है। तो मेरी नौजवान पीढ़ी से फिर पुनः ये अपील है कि किसी भी प्रकार की नशे वाली चीज़ों की तरफ ध्यान न दे, और जो नशे के व्यापारी हैं मैं उनसे 2 लाइनें उनको बोलना चाहूँगा कि इन मुर्दों की बस्ती में सब भूतों की बाती, इन मुर्दों की बस्ती में सब भूतों की बाती अपनी जिंदगी व्यतीत करते नजर आते हैं और अपने निजी स्वार्थ की खातिर इंसानियत का गला घोटते नजर आते हैं। तो उनसे भी मेरा ये आग्रह है कि इन सब चीज़ों को दरकिनार कर दीजिए, एक अच्छे इंसान की तरह आप अपना जीवन यापन शुरू कर लीजिए। इसी में आपकी भलाई है। चाहे आप कितने भी शरीफ हैं, चाहे आप कितने भी मासूम हैं, लेकिन अगर किसी प्रकार का जो बैन आइटम्स है, जो प्रतिबंधित ड्रग्स को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक कल्प्रिट हैं, तो आप एक क्रिमिनल हैं। तो और आपका जो आप उसमें भी इजाफा कर रहे हैं, जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को समाज के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए तमाम पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।